Good morning, student. Welcome you all. So, as you all know, that we have already done this chapter, that is the making of scientist. So, basically, this is the second part of this particular chapter. So, this is a story of someone that how he become a proper and successful scientist. So, basically, here Richard Ebright is a proper and successful scientist, and Richard Ebright got so many award, right? Like he had received a serial scholar award and shearing clock award for biochemistry and the molecular biology. So, and he had also fondness to know different things and to become a very successful scientist. So, as we all know that here the writer tell us so many stages of the Richard Ebright. Like first we read about when he was 22 years old and he was a former scout of the year, or he just enrolled himself in a scout. And then we just saw कि first class में इन्होंने क्या किया था. Then we just discussed, means we were discussing about her mother, कि how she dedicate herself into his son education, right? So basically now we will see what happened next in the second half of the story. Let's start. So just see the page number 35, right? 35, paragraph number, fifth paragraph number. All right. So the next year his science fair project was testing the theory. See, आप सबको पता है कि जब हम पढ़ रहे थे तो जब when he was in 7th grade, means जब when Richard Ebright was in 7th grade or the 7th standard, इन्होंने एक साइंस फेयर में, मीन्स काउंटी साइंस फेयर, काउंटी मीन्स द रीजन साइंस फेयर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. बट ही loses that time, he lost that time, and he didn't get any prize that time. So this time he proved himself. How? Let's see. So the next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. So as I told you in the beginning of the story कि जो रिचर्ड एब्राइट है, he was collecting the butterflies, means वो बहुत fond of होते हैं butterfly के, he loved too much. सो अब यहाँ पे एक थ्योरी वो प्रोजेक्ट में, मीन्स वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं एक थ्योरी पर, जिसमें वाइसरॉय बटरफ्लाई जस्ट कॉपिंग द मोनार्क बटरफ्लाई, राइट. आई विल शो यू कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज है वो कैसे दिखते हैं, और मोनार्क तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई हैं वो कॉपी करती हैं किसको? मोनार्क बटरफ्लाई को. वाई they were copying them? Let's see. The theory was the viceroys look like monarchs because monarch don't taste good to birds. See here, जो मोनार्क बेसिकली द रीज़न क्या है, जो वाइसरॉय मोनार्क्स हैं वो बिल्कुल वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज हैं मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे क्यों दिखना चाहती हैं? तो द रीज़न इज monarchs doesn't taste good to bird, means जो birds होती हैं basically they wouldn't eat monarch butterfly because monarch butterfly टेस्ट वाइज अच्छी नहीं होती है. सो इट नॉट टेस्ट गुड, लाइक जैसे हम जंक फूड्स होता है ना, ठीक है, तो और एक होता है वेजीज, राइट, हेल्दी फूड. तो नॉर्मली वी डोंट लाइक हेल्दी फूड्स, राइट. सो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के साथ ऐसा ही है कि वो मोनार्क उनके लिए एक हेल्दी फूड है, राइट, एक जंक फूड नहीं है, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करते बिकॉज इट्स टेस्ट नॉट गुड. सो वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड, मीन्स ऑन द कॉन्ट्री, टू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. सो बट अब क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड वी विल सी जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं इट्स टेस्ट इज वेरी गुड, मीन्स वो बहुत टेस्टी होती हैं. बट अगर वो मोनार्क बटरफ्लाई की जैसे दिखती हैं तो बर्ड्स उनको नहीं कैच कर पाते. अंडरस्टैंड? सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, the less likely they are to becomes the bird's dinner. So that is the main reason जो monarch butterflies होती हैं वो less likely होती हैं to become a bird's dinner. जो birds का जो dinner होता है ना वो बनने में less likely होती है because उनको normally पसंद नहीं होती है. So here are the picture of the monarch butterfly and the viceroy butterfly. We will discuss about it later.
First, we just see this paragraph. Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. So यहाँ पे अब एक देखो क्या होता है, जो प्रोजेक्ट है किसका, एब्राइट का, वो कह रहे हैं कि जो बर्ड्स है, नॉर्मली birds do not eat monarch butterflies because the taste is not good. That is the reason, right? But here he found that a starling क्या होता है, let's see. Starling is a common European bird. क्लियर है, उनका जो आउटर अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, इट्स लुक लाइक अ ब्लैक और ब्राउन और स्पॉटेड अ प्लमेज विद नेस्ट नियर द बिल्डिंग और इज अ गुड मिमिक, राइट? आई विल शो यू द पिक्चर आफ्टर दिस चैप्टर, और यू कैन गो थ्रू द नेट और गूगल आप कर सकते हैं. सो वहाँ पे भी आपको स्टारलिंग बर्ड दिख जाएगी, कुछ ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉटेड प्लमेज होते हैं. सो he basically this starling bird eat ordinary bird food. अब ये ordinary bird food खाती है, तो what is that? Let's see. It would eat all the monarchs it could get. देखो अदर जो होते हैं, अदर जो बर्ड्स होती हैं, दे डू नॉट ईट द मोनार्क, बट स्टारलिंग बर्ड ईट ओनली मोनार्क बटरफ्लाइज. सो ये एक कंजम्पशन है और आप कह सकते हैं डिफरेंट है, राइट? Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. देखो अब जो रिसर्च किया कि एग्जैक्टली जो वाइसरॉयज जो बटरफ्लाई हैं, दे जस्ट कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाई. नाउ सी द पिक्चर. देखो आप यू कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बटरफ्लाइज बिकॉज दे एग्जैक्टली लुक लाइक द सेम. आप थोड़े से विंग्स में आप थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं कि जो ऊपर मीन्स हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई, टॉप पे जो मोनार्क बटरफ्लाई है एंड डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई टू टॉप, मीन्स टॉप पे है दैट इज द मोनार्क. आई विल शो यू. At the top, this is the monarch butterfly, right? And this is the viceroy butterfly. So, see, हम कोई डिफरेंस आप बहुत मतलब आप डीपली इस पे स्टडी करोगे या बहुत स्टेयर करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू विल गेट सम रिजल्ट और यू कैन फाइंड सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बट अगर आप नॉर्मली से देखोगे तो आप उसको उसमें यू कैन नॉट फाइंड कि भाई इसमें इनमें क्या डिफरेंस है. अंडरस्टैंड? So, this project was placed first in zoology division and third overall in the county science fire. So, zoology क्या होता है? Basically any study of animal. Which animal it what zoology which you already aware about it. Understand? आप सबको पता ही होगा. So, division and third overall in the county science fire. तो इन्होंने जो first उनका project था zoology पर था और कहाँ पे इन्होंने काउंटी साइंस फेयर मीन्स उनके जो रीजन में हुआ था साइंस फेयर, वहाँ पे इन्होंने शो किया. Alright, let's see the another paragraph. So in his second year in high school, so as I told you many times, here the writer tell us his stages, different stages, education stages. So likewise here when he was in second year in his high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. So अब जब ये हाई स्कूल में थे तो उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट? और एक रिसर्च किया. बेसिकली रिसर्च आप लोग सब जानते होंगे कि व्हाट इज रिसर्च. तो ही हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इंसेक्ट. अब इंसेक्ट्स के हॉर्मोन्स पर वो कुछ डिस्कवरी करना चाहते, तो इनडायरेक्टली इज ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ the life of cell. So indirectly we can say that it is a new kind of theory of the life of cell. So first starting में हमने what is cell, right? इसके बारे में हमने पढ़ा था. क्लियर है? अब लाइफ ऑफ सेल्स जो है आप कह सकते हो कि एक नई थ्योरी है जिसपे लाइफ ऑफ सेल के बारे में इनडायरेक्टली ही ट्राइड टू एक्सप्लेन समथिंग. क्लियर? So the question he tried to answer was simple. What is the purpose of the
12 tiny gold spots on a monarch pupa. So जब हम साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, okay, means in our previous part we were discussing about the cycle of life cycle of the monarch butterfly. So first क्या होता है, जैसे eggs होते हैं, egg से pupa, caterpillar, then pupa, then the butterfly, ये जो पूरा लाइफ साइकिल चलता है, इसमें क्या होता है, ये अब इनका फोकस किस पे था, मीन्स रिचर्ड एब्राइट एंड हिज कंपेनियन, मीन्स हिज क्लासमेट और रूममेट, whatever you want to say. So here जो उनके जो टाइनी स्पॉट्स, छोटे छोटे स्पॉट्स थे, एंड दैट स्पॉट इज मीन्स गोल्ड के थे, 12 टाइनी स्पॉट्स थे. अब वो जो मोनार्क प्यूपा पे 12 स्पॉट्स है, वो क्या है, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. देखते हैं क्या है वो. Everyone assumed the spot were just ornamental, Ebright said, but Dr. Orchid didn't believe it. So क्या होता है, एवरीवन मतलब हम सबका अजम्पशन होता है, वी जस्ट अज्यूम दैट जो स्पॉट्स होते हैं दे जस्ट ऑर्नामेंटल, दे जस्ट फॉर डेकोरेशन, राइट. जैसे अदर कोई भी स्पॉट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, वो हम देखते हैं ना, जैसे टाइगर है, पैंथर है, उनकी जो लाइनिंग्स है, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है. बट एब्राइट और जो डॉक्टर ऑकवर्ड हैं, वो दे डिडंट बिलीव इट, वो दोनों ही इस पर बिलीव नहीं करते. वाई? टू फाइंड द आंसर, मीन्स अब उनको एक आंसर ढूंढना, बिकॉज इफ दे डोंट बिलीव इट, तो दे हैव टू जस्ट शो द प्रूफ, right? So to find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that spot were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. So इन्होंने क्या करा, जो साइंस के स्टूडेंट थे, एब्राइट थे, जो अदर साइंस के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर एक डिवाइस प्रोड्यूस किया, एंड दैट डिवाइस शोड अस कि जो स्पॉट है ऑन मोनार्क प्यूपा, वो स्पॉट जस्ट इट वाज नेसेसरी बिकॉज डेवलपमेंट में वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसके डेवलपमेंट में? बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में, लाइक right. So that is why it is not an ornamental thing, it is necessary spot for full development of butterflies. All right, so this project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. So basically this project is through this project he got a entry pass, right? किस पे entry pass मिला उनको? First is International Science and Engineering Fair में उनको entry pass मिला. There he won 3rd place of Zoology. वहाँ पे he got 3rd place. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. So see, after this research and discoveries, he got so many things in his life, right? हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? If we don't get a good fruit from our hard work, then क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. बट इन्हें वो सब चीज़ें मिली जो ये डिजर्व करते हैं. लाइक इन्हें हर, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में उनको एंट्री के लिए मिला, 3rd प्लेस उन्होंने जूलॉजी में ली. एंड द सेकेंड थिंग इज, जो समर के टाइम पे उन्होंने एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, जो जिसका क्या नाम है, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. एंटोमोलॉजी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जब हम इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं. सो एज अ हाई स्कूल junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa. अब हाई स्कूल जूनियर की बात हो रही है, जहाँ पे रिचर्ड अपना कंटिन्यू करते हैं कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ऑन द मोनार्क प्यूपा पे, जो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एक्चुअली, जो मोनार्क प्यूपा पे 12 स्पॉट्स, 12 गोल्डन स्पॉट, उस पर वो अपना कंटिन्यू करते हैं एक्सपेरिमेंट. सो दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. सो इफ यू ऑल रिमेंबर कि फर्स्ट जो इंटरनेशनल साइंस फेयर हुआ था, देन ही गॉट नथिंग, right? But this time he got which place? He got first place. He won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in Army Laboratory during the summer. और summer के टाइम पे उनको another chance मिला कहाँ पे work करने के लिए? Army Laboratory में. So in his senior year he went a step further.
In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the गोल्ड स्पॉट्स। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने प्रूव किया। अब मैंने एक स्टेप मीन्स ही जस्ट स्टेप अहेड, राइट। उन्होंने क्या किया, सेल्स को, जैसे मोनार्क के विंग्स होते हैं ना, अब मोनार्क्स के विंग्स जब ग्रू करते हैं तो वो हॉर्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, तो वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे ना वो हॉर्मोन्स चेंज करते हैं एंड थ्रू दैट हॉर्मोन वो जो मोनार्क के विंग्स होते हैं वो जस्ट स्प्रेड आउट होते हैं और बाहर निकलते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट होता है। That project won first place for the zoology at the international fair. So here one more achievement कि उनको first prize मिला international fair में for zoology. He spent the summer after graduations doing further work at the army laboratory. एंड अब देखो समर वेकेशंस नॉर्मली इन्होंने कहाँ पे, आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने आगे का जो काम किया वेयर इन at the army laboratory में उन्होंने वर्क किया एंड at the laboratory of the US Department of Agriculture and where it's situated in the US Department of Agriculture. So the following summer after his freshman year at Harvard University, following years देखो अब क्या बता रहे हैं कि जो कमिंग समर्स हैं, राइट। तो इन्होंने कहाँ पे उनको कमिंग समर्स थे, मीन्स जब इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एज अ फ्रेशमैन जब कंप्लीट किया, देन द नेक्स्ट समर ए ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहाँ पे वो वापस चले गए, जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी थी वहाँ पे, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन ऑफ फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। सो अब उनको ज्यादा वर्क करना था किस पर, जो गोल्ड स्पॉट थे ऑन प्यूपा उस पर अब ये वर्क कर रहे थे। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफेस्टिकेटेड हियर, सोफेस्टिकेटेड मीन्स एडवांस, आप कह सकते हो एडवांस इंस्ट्रूमेंट पे ही जस्ट वर्क ऑन इट। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल structure. So with this instrument he was able to get or to identify जो chemical structures होते हैं हार्मोन के वो। So a year and a half later means कुछ 1.5 साल बाद during his junior year means when he was in junior years जब वो चल रहा था, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. See, first butterflies, then the 12 spots on pupa, then the hormone changes. Now इट्स टाइम कि उनका जो सेल लाइफ से जो लव था वो वापस आए, जब उन्होंने एक एक्सरे फोटो देखा और उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर था रिलेटेड टू सम हार्मोन, अब उनका ध्यान बेसिकली उस पर ही गया। सो देयर वाज अ सर्टेन हार्मोन प्रोड्यूस्ड, और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे वो, बिकॉज ही हैज़ बीन एक्सपेरिमेंट अ लॉट फॉर दीज बटरफ्लाईज और ही हैज़ अ नॉलेज अबाउट इट। क्लियर है। सो अब यहाँ पे देखो, व्हेन ही सॉ दोज फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेका है अ क्राई ऑफ ट्राइंग फॉर डिस्कवरी। देखो एक होता है ना जब हम किसी कोई डिस्कवरी करते हैं और उस पर हमको जीत मिल जाती है, यानी हम उस पर अच्छा अचीवमेंट हो जाता है तो उसे यूरेका कहते हैं। और इवन आई हैव गॉट इट, तो उस फोटो से आई थिंक उसको कुछ ऐसा ही कुछ फील हुआ होगा, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया होगा। सो ही जस्ट ओनली सेड कि उन्होंने कुछ यूरेका टाइप की फीलिंग यहाँ पे शो नहीं करी है। ही जस्ट से कि आई हैव गॉट इट मीन्स आई डिड इट बेसिकली एट द एंड। और but he believed that along with his findings about insects hormones, the photos give him the answer to one of biology's puzzles. So अब देखो वो जो insects hormones थे ना, और जैसे उन्होंने एक्सरे देखा था, वो उनको जो आंसर था वो बेसिकली उनको वो आंसर मिल गया था डैट कि जो बायोलॉजिकल पजल्स है। जब आप साइंस पढ़ोगे, आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया होगा, तो अब ये बायोलॉजिकल एक पजल है वो इनका सॉल्व हो गया। किस तरह का बायोलॉजिकल पजल देखते हैं। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस मीन्स द सेंटर ऑफ द सेल टू कंट्रोल हेरिडिटी। तो आप ये देखो जो कि रीड कैसे करता है ब्लूप्रिंट, राइट, डीएनए। अब मीन्स अभी कह रहे हैं कि जो डीएनए है वो एक सेंट्रल है सेल का, जो क्या करता है, जस्ट कंट्रोल हेरिडिटी,
लाइक हमारी जो हेरिडिटी है वो कंट्रोल करता है। हेरिडिटी क्या होती है? द पासिंग ऑन द फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं और जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation, that is called hereditary. So it determines the form and function of the cell, thus the DNA is blueprint for life. तो ये determine करती है कि हमारी functions कैसे होंगी सेल का, that is why जो DNA होता है वो blueprint होता है हमारी life का। A Bright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. So अब देखो इनके जो roommates थे, Bright and his roommate named is James R. Wong, वो all through the night they were doing some work, they were drawing pictures and all, constructed some plastics models and molecules, just show कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट बेसिकली, क्योंकि हम थ्योरी में तो ऑलरेडी ये बता चुके हैं, बट एक्सपेरिमेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। तो आफ्टर दिस उन्होंने एक पेपर पे पूरी थ्योरी भी एक्सप्लेन करी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम द हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर। सी surprisingly, if nobody knows about him much, means about Richard Ebright. So Richard Ebright graduate हुए थे, he was graduated where from the Harvard with highest honor, means with highest grades, with highest marks, second in the class of 1510 student, मतलब कुछ 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जिनमें इन्हें कौन सी पोजीशन मिली थी? Second position. It was a very huge achievement for him. So Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. अब देखो ग्रेजुएट स्टूडेंट हुए ये कहाँ पे? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के। There he began doing experiment to test his theory. So वहीं से ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. If his theory, जो इनकी theory है quite good और maybe proves correct, सही साबित होती है, so एक further वो step लेंगे to understanding the process of life. It might also lead to a new ideas for preventing some types of cancer and other disease. तो मे बी उनको कुछ न्यू आइडियाज मिल जाए कि जो कैंसर है और जो डिजीज है, हाउ टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ डिजीज और हाउ टू गेट रिड of these big disease or dangerous disease. So all of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. Because if we don't curious about something or someone, तो हम ये जो achieve करते हैं ना और एक position हासिल करते हैं वो हम नहीं कर पाते, like Ebright. So his high school research into the purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. So जो research उन्होंने start किया था, means the 12 tiny golden spot on a monarch pupa, वो से कहाँ पे ले गए? It's led him to the theory of cell life. So Richard Ebright has been interested in science fair. He first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. See, फर्स्ट इनका इंटरेस्ट था जो आप और हम जानते हैं, दैट इज ही वॉज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट इट वॉज नॉट ओनली द इंटरेस्ट और नॉट हॉबी, इसके अलावा भी ही हैज़ सो मैनी हॉबीज लाइक इंटरेस्ट आप कह सकते हो। तो एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट। देखो कैनोइस्ट होती है एक पतली सी नाव होती है और जब हम उसको चलाते हैं तो जो चलाने वाला होता है उसे कैनोइस्ट कहते हैं। सो ये गुड कैनोइस्ट भी थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज अ वेरी गुड डिबेटर ऑल्सो और पब्लिक स्पीकर ऑल्सो एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। एक अच्छे फोटोग्राफर थी, पर्टिकुलर जो नेचर और साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनकी फोटोग्राफी करते थे एंड ही वॉज गुड एट दैम। In high school, Richard Ebright was a straight student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. So when he was in high school, वो एक normal student थे, right? Because according to him, learning was too easy thing. मैं किसी भी चीज़ को learn करना बहुत easy था. So he just lost his energy. कहाँ पे अपनी energy को lost करते थे और
ये कह सकते हैं यूज हिज एनर्जी कहाँ पे, टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल, 2 क्लब्स थे, एक डिबेटिंग और एक मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, यूज करते थे बेसिकली. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड A. Vehrier, his social studies teacher and advisor to both clubs. So now he was a very admired person. कौन थे वो? रिचर्ड, जो एक सोशल स्टडी टीचर थे इनके और एडवाइजर थे टू बोथ क्लब्स मीन्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के वो एडवाइजर भी थे. सो मिस्टर वेरियर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर me then. He opened my minds to new ideas, Ebright said. So here the Ebright exclaimed us or the said कि जो Mr. Verrier थे, his social studies teacher, his person is the perfect for him. Why? Because he just opened the mind, means उन्होंने बहुत सारे new ideas Ebright को दिए थे. So Richard would always give that extra effort, Mr. Vehrier said. So here the Mr. Vehrier क्या बताते हैं हमको? He says कि जो रिचर्ड थे वो हमेशा he put some extra efforts, हमेशा extra efforts देते थे भले वो किसी भी चीज में हो. Like what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. So here Mr. Vehrier said कि what is the best part of him or what is pleased me कि जो ये पर्सन करते थे like 3-4 hours नाइट के टाइम पे ही जस्ट डूइंग डिबेट रिसर्च और बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा ही वॉज डूइंग ऑल हिज रिसर्च लाइक बटरफ्लाइज और अदर इंसेक्ट्स पे वो नॉर्मली रिसर्च करते थे, वो सब भी वो करते थे. सो रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर विहेरर कंटिन्यू, तो ही वॉज जस्ट कंटिन्यूड हिज स्पीच अबाउट रिचर्ड. वो कहते थे ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन बट नॉट इन अ बैड सेंस, राइट. ही एक्सप्लेन Richard was not interested in winning for the winning sake or winning to get a prize. Rather, means Richard ऐसे नहीं थे कि सिर्फ जीतने के लिए ही वो ये सब करते थे और अच्छा करने की कोशिश करते थे. But rather than he was winning because he wanted to do the best job he could. वो जीतते क्यों थे? बिकॉज उनको अच्छा करना होता था. जो भी क्या होता है कि वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ और वॉट एवर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लाइफ और इन दिस पर्टिकुलर लाइफ, हमें अपना बेस्ट देना होता है, राइट. अब वॉट एवर द रिजल्ट और वॉट एवर द फ्रूट, हम उसके बारे में अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली हम उस प्रेजेंट में जो भी हम वर्क कर रहे हैं हम अच्छा नहीं कर पाएंगे. So rather than thinking about the result or the consequences or the fruit, just focus on your studies, just focus on whatever you are doing right now, right. So for the right reasons he wants to be the best, that is why he is the best. So and that it one of the ingredients in making of the scientist. Now here the writer, who is the writer? Robert W. Peterson. So just Robert W. Peterson just explain us, just tell us कि what is the ingredient to make a proper or successful scientist. जैसे हम कोई भी डिश नहीं बोलेंगे, डिश तो प्लेट होती है, कोई भी फूड आइटम्स जब हम बनाते हैं तो वी नीड सम इंग्रेडिएंट लाइक चिलीज, लाइक कोरिएंडर, like some veggies and all. So यहाँ पे भी एक ingredient होता है to make a perfect scientist. So what was that? Let's see. Start with the first rate mind with the focused mind, with very determined person, and add some curiosity. So after the focused mind we just add into curiosity and mix it well to win for the right reason. और एक right reason के लिए उसको mix कर दो. अगर आपको कोई कुछ बनना है उसके लिए, तो अगर good food चाहिए तो वैसे ही अगर अच्छा scientist बनना है तो इन सब चीज़ों को क्या कर दो, mix कर दो. So Ebright has these qualities. तो Ebright has all these qualities जो भी रॉबर्ट पीटरसन डिस्कस कर रहे हैं. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवलर्स ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो इनकी मदर ने उनको एक बुक दी थी, दैट इज द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10. उसके बाद से इनके लिए जस्ट ओपन हो गया था साइंस वर्ल्ड. एंड रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और मेन थिंग क्या है कि रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी होती है वो कभी लॉस नहीं करी, राइट. सो हियर वी गेट अ वेरी गुड मैसेज कि इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग और एक गुड पोजीशन पे अगर हमें जाना है, वी वांट टू गेट सम गुड पोजीशन,
तो वी जस्ट नीड टू फोकस, डिटरमाइन एंड द क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग. अगर हम क्यूरियस नहीं रहेंगे किसी चीज़ को लेकर, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ पा सकते हैं या कुछ अचीव कर सकते हैं in our life. So I hope you all have must understand this chapter very well. So thank you for watching this video.